Hello students, now let us study what are colligative properties. In my last lesson, I provided you little bit introduction about colligative properties, and today we are going to study first colligative property, that is relative lowering in vapor pressure. Before going to that, let us understand once again what are colligative properties. The topic of colligative properties is applicable to solutions which behave as ideal solutions. This topic is applicable to dilute solutions having non-volatile solute. What I said, topic of colligative properties is applicable to ideal solutions which are very dilute solutions and which have non-volatile solute in them. So we studied that the ideal solutions have some properties which depend on the number of solute particles and not on the nature of the solute particles. Such properties of ideal solutions which depend on number of solute particles and not on the nature of the solute particles, they are called as colligative properties, which are also called as democratic properties, which we studied in our last lecture. So 4 colligative properties we are going to discuss in this chapter. बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में. Number 1, relative lowering of vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. Number 3, depression in freezing point. And number 4, osmotic pressure. So now let us discuss the colligative property relative lowering in vapor pressure. इसमें हम कुछ स्टडी कर चुके हैं पहले से. Let us suppose we have pure solvent. In that pure solvent, we add some quantity of non-volatile solute. By doing so, vapor pressure decreases. So now, the vapor pressure of the solution is less than the vapor pressure of the pure solvent. This vapor pressure decreases due to the addition of non-volatile solute. So when non-volatile solute is added to a pure solvent, the vapor pressure decreases. And this decrease in the vapor pressure is known as lowering in vapor pressure. And lowering in vapor pressure with respect to vapor pressure of the pure solvent is called as relative lowering in vapor pressure. All these things we have already understood. So now, let us study it from the board. And students, also remember one thing. By using colligative property of a solution, we can determine the molecular mass. We can determine the molar mass of the solute. तो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू
किसी भी सोल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर हमें नोन हो, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ऑल दिस विल बी स्टडीड इन दिस टॉपिक. सो फोकस करते हैं बोर्ड पे. स्टूडेंट यहां देखिएगा सभी, relative lowering in vapor pressure. According to Raoult's law for a solution containing non-volatile solute. क्यों यहां पे non-volatile solute? Because in this case solute added in the pure solvent is non-volatile, and because of that vapor pressure decreases, which is called as lowering in vapor pressure. तो आप स्टडी कर चुके हैं. According to Raoult's law, for a solution containing non-volatile solute, PS, स्टूडेंट PS हमने क्या सपोज किया था अपने अर्लियर लेक्चर्स में? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. एंड रिमेंबर, solution is a solution having non-volatile solute. So according to Raoult's law, PS, vapor pressure of a solution, is equal to P naught A. P naught A is the vapor pressure of the solvent in the pure state into XA. XA is the mole fraction of the solvent. तो ये हम पहले का स्टडी कर चुके हैं. Vapor pressure of the solution containing non-volatile solute according to Raoult's law, that is PS equal to P naught A into XA. फिर हम स्टडी किए थे बाइनरी सॉल्यूशन के केस में XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1. याद होगा ना आपको? वहीं से हम ये फाइंड आउट करते हैं. वी नो दैट XA इक्वल्स टू 1 माइनस XB. याद रखिए, पढ़ चुके हैं आप. XA equals to 1 minus XB because XA plus XB is equal to 1 for a binary solution, then the value of XA will be equal to 1 minus XB. तो ये जो XA का वैल्यू है हम यहां इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो PS will be equal to, this is P naught A into XA. What is XA? 1 minus chi XB. So in this relation, when the value of XA is put, we get PS equals to P naught A into 1 minus XB. जब हम स्टूडेंट इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा PS equals to P naught A minus P naught A into XB. This relation we will get after solving this bracket. फिर यहां पे देखिएगा, यहां पे आप क्या देखते हैं स्टूडेंट? यहां पे दिस P naught A जो एक पॉजिटिव का टर्म है, हम उसको इक्वालिटी के इस तरफ लाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा. तो P naught A को इस तरफ लाए हम तो ये P naught A को इस तरफ लाने पर ये नेगेटिव का टर्म हो जाएगा. PS माइनस P naught A इक्वल्स टू, ये वैसा का वैसा रहा अपनी जगह पे, माइनस P naught A इंटू XB. तो होप करता हूं इतना सिंपल मैथमेटिक्स आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. और वेरी सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं. इस पूरी रिलेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय -1. वी गेट क्या मिलेगा हमें? PS को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, PS पॉजिटिव का टर्म है, इट विल बिकम माइनस PS. ये माइनस का टर्म बन जाएगा पॉजिटिव. स्टूडेंट ये जो हम देखे यहां पे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. एंड दिस इज P naught A इक्वल्स टू, ये टर्म जो नेगेटिव में है जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. तो P naught A इंटू XB. तो इस पूरी रिलेशन को जब हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे बाय -1, वी विल गेट माइनस PS प्लस P naught A इक्वल टू P naught A इंटू XB. फिर हम यहां पे रीअरेंज करेंगे. क्या हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली. ये नेगेटिव का टर्म है, ये पॉजिटिव का टर्म है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं.
तो स्टूडेंट यहां ये जो पॉजिटिव का टर्म है P नॉट A, इसको मैंने पहले लिख लिया P नॉट A, ये पॉजिटिव का टर्म है। ये नेगेटिव वाला टर्म है, ये देख लीजिए माइनस PS, इसको मैंने बाद में लिख दिया माइनस PS इक्वल्स टू ये वैसा का वैसा रहा P नॉट A इंटू XB। तो इस तरह इसको रीअरेंज करने पर वी गेट P नॉट A माइनस PS इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XB। XB is the mole fraction of the solute. P naught A is the vapor pressure of the solvent in the pure state. PS is the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute. फिर हम इसको रीअरेंज करेंगे। यहां पे फोकस करना है स्टूडेंट सभी ने। ये जो हमारे पास टर्म है P naught A, हम इसको इक्वालिटी के उस तरफ ले जाएंगे, तो उस तरफ जाने पर ये डिवाइड में चली जाएगी। तो वी विल गेट P naught A minus PS upon P naught A is equal to XB. That's the equation number 1. अब स्टूडेंट यहां पे आपको ध्यान देना होगा, P naught A क्या है? That is the vapor pressure of the solvent in the pure state, जो हाई होगा। हम इसमें ऐड करेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन क्योंकि अपने में कंटेन कर रहा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट से कम होगा। तो सॉल्यूशन विल हैव वेपर प्रेशर लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो ये जो टर्म स्टूडेंट होगी P naught A vapor pressure of the solvent, vapor pressure of the pure solvent, और ये जो PS है vapor pressure of the solution containing non volatile solute, ये आपको बताएगा कि वेपर प्रेशर में कितना डिग्रीज आया है। हमारे पास सॉल्वेंट है प्योर, हमने उसका वेपर प्रेशर मेजर कर लिया, हम उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। और अब हम सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमें इंडिकेट करेगा कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज करा है, कितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द lowering in vapor pressure. So what will be lowering in vapor pressure in this relation? P naught A minus PS, that will be the lowering in vapor pressure. देखिए स्टूडेंट ये क्या होगा फिर, P naught A minus PS with respect to P naught A। मैं रिपीट करता हूं, P naught A minus PS, this is lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure with respect to vapor pressure of the pure solvent, that will be called as relative lowering in vapor pressure। तो ये जो पूरा टर्म होगा ये वाला स्टूडेंट, दिस इज द relative lowering in vapor pressure। तो ये टर्म जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, दिस इज relative lowering in vapor pressure, that is equal to XB, mole fraction of the solute। This is another statement of Raoult's law। यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से कि relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of the solute at constant temperature। So Raoult's law का हम एक और स्टेटमेंट फाइंड आउट करते हैं, relative lowering in vapor pressure is equal to or say directly proportional to the mole fraction of the solute at a given temperature। और यहां से प्रूव होता है कि relative lowering in vapor pressure is a colligative property। Colligative property is a property which depends on the number of solute particles। तो यहां देख लीजिए relative lowering in vapor pressure है ये, which is a colligative property। Why? Because this relative lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute। क्या है mole fraction of the solute? Number of moles of solute divided by total number of moles of solute and solvent in the solution। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करता है relative lowering in vapor pressure
It means that relative lowering in vapor pressure is a colligative property. So that is the part number 1. याद रखिएगा इस रिलेशन को. P naught A, vapor pressure of solvent in pure state. PS, vapor pressure of solution containing non-volatile solute. P naught A minus PS, lowering in vapor pressure. P naught A minus PS divided by P naught A, relative lowering in vapor pressure, which is equal to XB. That is mole fraction of the solute, and let us suppose this is the equation number 1. Now, the value of colligative property can be used to determine the molecular mass, molar mass of a solute. Now we will study how by using relative lowering in vapor pressure as a colligative property हम इसको यूज करके सॉल्यूट का मोलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो वंस अगेन, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर हमें नोन हो तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू यूज करते हुए सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. कैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यूज करके फाइंड आउट किया जा सकता है सॉल्यूट का मोलर मास. सो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट by using relative lowering in vapor pressure. As we know, अभी भी स्टडी किया, XB mole fraction of solute equals to P naught A minus PS upon P naught A. But बहुत लेक्चर्स पहले आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट स्टडी किए थे और उनके फार्मूले स्टडी किए थे. तो स्टूडेंट यहां देखना होगा XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे मिलती है हमें. सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दी सॉल्यूशन. सो द वैल्यू ऑफ XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू NB. व्हाट इज NB? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. बाइनरी सॉल्यूशन में मैं सिंबल A यूज कर रहा हूं सॉल्वेंट के लिए और सिंबल B यूज कर रहा हूं सॉल्यूट के लिए. अपने कुछ अर्लियर लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन NA. NA इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो स्टूडेंट, NA प्लस NB आपको इंडिकेट करेगा total number of moles of solvent and solute present in the solution. So XB mole fraction of solute can be equal to NB upon NA plus NB, and let us suppose this is the equation number 3. NA number of moles of solute, NB number of moles of solvent. Sorry, NA number of moles of solvent and NB number of moles of solute. अब स्टूडेंट यहां देखिएगा, फिर बहुत लेक्चर्स पहले बिगिनिंग में इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, आप किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं एक छोटा सा फार्मूला यूज करके, जिसके भी आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. उस सब्सटेंस का आप मास ले लीजिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस divided by molar mass of that substance. This gives the number of moles of that substance. तो यहां पे देखिएगा, ये हमारे पास NB है. NB means number of moles of solute. तो कैसे आप number of moles of solute find out कर सकते हैं? Number of moles of solute is equal to WB, mass of solute divided by molar mass of the solute. W, student, WB
mass of the solute, and Mb, molar mass of the solute. And A, number of moles of solvent. Simple. Mass of the solvent, Wa, and Ma, molar mass of the solvent. तो यहां लिखा भी है where Wb and Wa are the mass of solute and solvent. Mb and Ma are the molar masses of the solute and solvent. तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज हैं किसका, Na का वैल्यू है ये, Nb का वैल्यू है, हम इन सभी वैल्यूज ऑफ Na एंड Nb को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे इन द इक्वेशन नंबर 3. सो यहां हमने लिखा पुट द वैल्यूज ऑफ Nb एंड Na इन इक्वेशन नंबर 3. लेट्स सी व्हाट वी गेट. xb equals to Nb. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ Nb? यहां ये Wb अपॉन Nb, ये स्टूडेंट Wb अपॉन Nb, ये Nb का वैल्यू है. यहां हमने Nb का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था. फिर यहां हमारा अपॉन, ये हमने अपॉन ले लिया. फिर यहां Na का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करना है. द वैल्यू ऑफ Na इज, यहां पे देख लीजिए आप, Wa अपॉन Ma, Wa अपॉन Ma. फिर उसमें प्लस, तो यहां पे हमारा प्लस. Nb, तो Nb का वैल्यू आप जान चुके हैं स्टूडेंट, क्या है? Wb अपॉन Nb. So when the values of Nb and Na are put in this equation number 3, we get this relation. बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. यहां मैंने रिलेशन में स्टूडेंट ये क्यों लिख दिया, Wb upon Mb is equal to negligible. The topic of colligative properties is applicable to dilute solutions. These are the dilute solutions, ऐसे dilute solutions जिनमें सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम है. इतना कम है इनमें सॉल्यूट का क्वांटिटी कि हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को यहां निग्लेक्ट कर सकते हैं इन द डिनोमिनेटर. ये क्या हुआ डिनोमिनेटर? स्टूडेंट यहां पे देखिए, डिनोमिनेटर में देखिए, हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को सॉल्वेंट की क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं. यहां डिनोमिनेटर में स्टूडेंट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, एंड सिंस दीज आर द very dilute solutions, and in these very dilute solutions the quantity of solute is very less in comparison to the quantity of the solvent. Therefore in the denominator the quantity of the solute can be considered negligible. डिनोमिनेटर में ही क्यों इनको नेग्लिजिबल किया, कंसीडर यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में ही सॉल्यूट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द सॉल्वेंट, एंड दीज आर very dilute solutions. They have very low quantity of solute, so the quantity of solute in the denominator can be considered negligible. और अगर स्टूडेंट ये हम negligible कंसीडर करेंगे, इसका वैल्यू अगर 1 हो गया, इसको हमने नेग्लिजिबल स्टूडेंट कंसीडर कर लिया, तो फिर हमारा रिलेशन क्या बचेगा? देन xb इक्वल टू यही रहेगा Wb अपॉन Mb अपॉन हमारा हो जाएगा ये Wa अपॉन Ma. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, xb इज इक्वल टू Wb अपॉन Mb, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये तो आना चाहिए बच्चे आपको खुद ही, तो वी विल गेट, ये रेसिप्रोकल करने पर xb इज इक्वल टू Wb अपॉन Mb, ये तो वैसे ही रहा Wb अपॉन Mb, इसका रेसिप्रोकल हो गया Ma अपॉन Wa. यहां पे हमने इनको रीअरेंज आगे किया है, WW वाली टर्म्स इकट्ठी कर दी और MM वाली टर्म्स इकट्ठी कर दी. तो देख लीजिए कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये XB इज इक्वल टू दिस इज WB, और हम WA को इस तरफ ले जाए, देख लीजिए WB अपॉन WA, एंड देन MB को इस तरफ ले गए और वी गेट MA अपॉन MB, एंड दिस इज द रिलेशन नंबर 4. ये इसी में हमने रीअरेंजमेंट किया और ये रिलेशन नंबर हमने 4 को ऑब्टेन किया है. और स्टूडेंट सब अब यहां नीचे फोकस कीजिएगा, काफी नीचे लाइन है, यहां पे सभी ने फोकस करना है. तो मैंने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ xb, ये जो xb का वैल्यू आपको मिला है, जो मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर 4 में लिखा है,
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बी कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में जो एक्स बी का वैल्यू है उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जो एक्स बी है उसका वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है कहां से, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4। तो लेट्स सी क्या हमें मिलता है। तो यहां पे आपको देखना होगा हमें क्या मिल रहा है। ये कहां से आ गया स्टूडेंट, अब ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास एक्स बी है। एक्स बी का वैल्यू हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं होप करता हूं आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो आराम से स्टूडेंट मेरी तरफ यहां पे देखिएगा। मैं होप करता हूं आपको सब कुछ पढ़ा जा रहा होगा बोर्ड से। तो यहां मैंने आपसे क्या बात कही, यहां पे हमने एक्स बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कहां से, इक्वेशन नंबर 4 से। और इक्वेशन नंबर 4 में एक्स बी का वैल्यू क्या है, यहां से वैल्यू ले रहा हूं मैं, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी इक्वल्स टू, ये यहां पे है हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। सो सिंपल। होप करता हूं आपने इसको खुद देखा होगा कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये जो एक्स बी है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से और हमें ये मिल गया। अब कुछ मैथमेटिक्स के रूल है स्टूडेंट्स। अगर मैं इस टर्म को, अगर इस टर्म का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो क्योंकि यहां इक्वालिटी का साइन है तो मुझे इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, मैं इस टर्म का रेसिप्रोकल ले रहा हूं। तो डब्ल्यू ए इंटू एम बी ऊपर चला जाएगा और डब्ल्यू बी इंटू एम ए नीचे आ जाएगा। तो ये हुआ स्टूडेंट, ये देख लीजिए, ये जो वाली टर्म थी स्टूडेंट, ये वाला डब्ल्यू ए इंटू एम बी ये ऊपर आ गया, डब्ल्यू ए इंटू एम बी न्यूमरेटर बन गया। और ये जो न्यूमरेटर था ये हमारा यहां पे डिनोमिनेटर बन गया, डब्ल्यू बी इंटू एम ए। हमने इसका रेसिप्रोकल किया है, इसका रेसिप्रोकल किया है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है। तो जब इसको आप रिवर्स करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे, यू विल गेट पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस और आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड एम बी इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट और आपको एम बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट अब यहां पे आपको देखना है, यहां पे ये जो हमारा इक्वेशन है ये वाला डिनोमिनेटर में, दिस होल टर्म विल बी शिफ्टेड टू this side of the equality and when this whole term is shifted to this side of the equality यहां पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी as per the rules of mathematics। तो जब हमने इसको पूरा यहां से स्टूडेंट शिफ्ट कर दिया इस टर्म को इक्वालिटी के उस तरफ, तो हमारे पास यहां पे सिर्फ ये रह गया डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये उस तरफ शिफ्ट हो गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां क्या बच गया, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस, ये स्टूडेंट, और ये मल्टीप्लाई में आ गया डब्ल्यू पी इंटू एम ए। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप बचा है हमारा स्टूडेंट्स, डब्ल्यू ए मास ऑफ द सॉल्वेंट, इसको इक्वालिटी के उस तरफ शिफ्ट करेंगे और ये डिवाइड में चला जाएगा। और स्टूडेंट देख लीजिए वहां पे क्या है हमारा, फॉर्म उससे छूट गया है, मैं उसको भी वहां पे लिख लेता हूं। तो एम बी इज इक्वल टू दिस फिगर, दिस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम ए, और यहां पे हम लिख देंगे किसको, डब्ल्यू ए को। स्टूडेंट ये डब्ल्यू ए कहां से आ गया, यहां पे होप करता हूं आप अंडरस्टैंड किए होंगे, क्योंकि यहां से डब्ल्यू ए को हम जब इक्वालिटी के उस पर शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पे जाके वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डब्ल्यू ए आ गया। और दिस इज एम बी, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इस तरह हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं इफ ऑल दीज वैल्यूज आर नोन। व्हाट इज एम बी, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। व्हाट इज पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ द pure solvent. What is PS? Vapor pressure of the solution containing non-volatile solute. What is WB? It is the mass of the solute. What is MA? It is the molar mass of the solvent. And what is WA? It is the mass of the given mass of the solvent. If all these values are known,
If the value of P naught A is known, the value of PS is known, the value of WB, MA, WA, if all these values are known, and if these known values are put in this relation, finally we will be able to find out the molar mass of the solute. This is how we can find out the molar mass of the solute by using relative lowering in vapor pressure as colligative property. तो इस तरह हमारा relative lowering in vapor pressure फिलहाल फिनिश हो रहा है. कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसके, बाद में लेते हैं वो, और इसको आपको रिपीटेडली देखना है. बार बार मैं आपसे कहता हूं, वीडियो तभी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे. नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है. एंड दोज स्टूडेंट्स हु फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर टीचर्स, only they succeed in their life and they build a strong and good and prosperous career. You have to decide. Before I leave the stage, camera will be there for a few seconds so that you can take a screenshot and note down the things. Thank you.